Hello friends, this is Nisha. Welcomes all of you to Easy Easy Life. We are reading 20th century Indo-English writers who have their contribution in the field of English literature. Today in this series, we are going to have one more very significant and celebrated name, that is of Arun Kolatkar. You can see the image of Arun Kolatkar. Kolatkar was not only a modern poet, but as a modern poet, he was actually one of the most experimental poets. And today we shall see how Kolatkar, with his professional etiquettes and with his professional expertise, made Indian English poetry vibrant with his experimental poetry. Modern English poetry of 1970s and 80s is remarkable for vivid presentation of contemporary time. Cultural identity and Indian sensibility with global touch became the hallmark of Indian English poetry. We can see poets like Shivik Kumar, Arun Kolatkar, K.K.N. Daruwala, Jeev Patel, Dilip Chitre. Jeev Patel and Dilip Chitre were the friends of Arun Kolatkar also. Used the themes of Indian situation, rituals, mythology, superstition, socio-political life of their contemporary time. Poetry became experimental poetry, foregrounds technique. Now we are going to talk about Arun Kolatkar's uh, life period, and after that we will discuss about his main creation which make him most popularized not only in India but among us the literature in the world of literature. Okay, you will see various images of his creations. Now we are going to have a brief intro of Arun Kolatkar. Arun Kolatkar is named Arun Balakrishna Kolatkar. His full name was Arun Balakrishna Kolatkar. Was born in a patriarchal Hindu family. His birth was on 1st November 1932, which was Kolhapur state in British India. Presently, it is part of Pune, Maharashtra. His demise was on 25 September 2004. He writes in both Marathi and English. His father, named Tatya Kolatkar, was an officer in educational department, and Arun Kolatkar's wife was Darshan Chhabda and Sonu. दर्शन छाबड़ा के साथ जो इनकी मैरिज होती है, इट वॉज बिकेम ए कम्प्लीटली फेलियर आफ्टर सम टाइम, एंड ही स्टार्ट्स टू ड्रिंक एंड स्टार्ट्स टू हैव quarrel with his wife, so they got separated. She was also from a high profile family. Let me talk about literary movement. Indian postmodernism से ये belong करते हैं. He was a translator, painter and a graphic designer. अरुण कोलात्कर को लिटरेचर के फील्ड में सिर्फ और सिर्फ इनकी कुछ क्रिएशंस के लिए जाना जाता है वर्ल्ड वाइड. अ पार्ट ऑफ दैट, अरुण कोलात्कर is a name in Maharashtra as a brilliant graphic designer. By the mid of 1960s, he was established as a graphic designer. He learned graphic designing from JJ School of Arts. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, from where he got his professionals mastery. So it was on JJ School of Arts. He worked for an advertising company which was Lintas. Lintas का भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है. हालांकि सेकेंड के लिहाज से इनके लिटरेचर से रिलेटेड ही इनका पूछा जाएगा, लेकिन अपार्ट ऑफ दैट वी मस्ट नो अबाउट द पोइट. He won the prestigious CAG award, CAG award for advertising 6 times. देखिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इनको 6 बार कंटिन्यूसली एक अवार्ड दिया गया है, CAG अवार्ड, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स को दिया जाता है. अब हम बात करने वाले हैं इनके आगे की लाइफ के बारे में. बाय 1966 his marriage with Darshan became a failure and they got separated, and later Kolatkar married with Sonu. इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी सोनू जी के साथ में. His Marathi poems of 1950s and 60s are written in the Bombay आगॉट of migrant working class society. यानी कि मुंबई में जो वर्किंग क्लास लोग हैं, यानी कि स्मॉल टाउन को छोड़कर वो एक अच्छे सुनहरे गोल्डन फ्यूचर के लिए जो लोग शहरों में आते हैं, मुंबई में आते हैं, और कैसे उनके
उनको उन वहाँ की सिचुएशन से गो थ्रू होना पड़ता है, उन सब को इन्होंने अपनी पोइट्री में बताने की कोशिश की है, क्योंकि खुद ये काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने करा था। स्ट्रगलिंग डेज जो इनके मुंबई में जो बीते थे, बॉम्बे में, उन सब के बारे में भी इन्होंने पोइम्स के थ्रू अपना एक फीलिंग्स को जाहिर किया है, बोथ इन मराठी एंड इंग्लिश। वर्किंग क्लास के बारे में साथ साथ इन्होंने लिखा है अंडरवर्ल्ड के बारे में। देखिए, ऐसा कोई अभी तक आपको पोइट नहीं मिला होगा इंडियन राइटर्स में जिन्होंने मुंबई में जो गैंगस्टर्स होते हैं, जो अंडरवर्ल्ड काम करता है एक, उनके बारे में इन्होंने ज़रूर लिखा है। टू मैच दिस इन हिज इंग्लिश ट्रांसलेशन ही समटाइम्स अडॉप्ट ए काउबॉय वेराइटी। इन्होंने एक मतलब बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में इसको यूटिलाइज किया है अपनी वर्डिंग्स को पोइट्री के थ्रू। ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड तुकाराम इनटू इंग्लिश। देखिए, मराठी में महाराष्ट्र में संत तुकाराम हुए हैं, हम सब जानते हैं, भक्ति धारा से जुड़े हुए थे, काफ़ी रिलीजियस पर्सनैलिटी थी, और उनकी जो बानियाँ हैं, जो उनके जो क्रिएशंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा फॉलो अप किया जाता है तुकाराम को, तो उनको भी इन्होंने फॉलो किया है, उनकी बानियों को, उनके जो शब्द हैं, उनके जो गीत हैं, उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया है। The struggling period of his life has been captured in his Marathi poem The Turnaround. The Turnaround जो पोइम है, जिसको इन्होंने बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, उसमें भी इनको इनका जो एक देखने को छवि देखने को मिलती है, वो क्या है, इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। बॉम्बे मेड मी ए बैगर, कल्याण गिव मी ए लंप ऑफ जैगरी टू सक। तो कुछ बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में इन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोइट्री जेजुरी वन द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज इन 1977। अरुण कोलात्कर के बारे में अगर लिटरेचर इंग्लिश में पूछा जाता है, अपार्ट ऑफ मराठी, लिटरेचर के मामले में सिर्फ लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, इट इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट लाइन दैट हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोइट्री जेजुरी won the Commonwealth Poetry Prize in 1977। अरुण कोलात्कर के बारे में दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बनते हैं, या मैं जितना भी पहले पढ़ चुके हूँ। 1977 में इनको कॉमनवेल्थ इंग्लिश पोइट्री प्राइज़ मिलता है जेजुरी के लिए, और एक और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि इनको भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, बट नॉट फॉर इंग्लिश बट फॉर मराठी। इनकी एक पोइम आती है बीज की वाही नाम से, एक कलेक्शन आता है मराठी कविताओं का, बीज की वाही। आपको पता होगा कि साहित्य अकादमी अवार्ड नॉट ओनली इन इंग्लिश, नॉट ओनली इन हिंदी, अ पार्ट ऑफ सो मैनी लैंग्वेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इनको 2005 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है बीज की वाही के लिए, लेकिन मराठी भाषा के लिए, ठीक है। ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड तुकाराम इंटू इंग्लिश, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। उसके अलावा इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है जेजुरी, फिर है काला घोड़ा, और एक है सर्पसूत्र। ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्रिएशन माने जाते हैं, जो इन्होंने मराठी से ही आगे ट्रांसलेट किए थे, जेजुरी को इन्होंने लिखा था। अब हम बात करने वाले हैं और भी कुछ चीज़ों की, वो है चिरमिरी। ये भी मराठी पोइम कलेक्शन है, 2004 में बीज की वाही, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड 2005 का इनको मिला था। फिर है द्रोण, ये भी 2004 में आया, ये भी 2004 में, ये भी 2004 में, ठीक है। और इसके अलावा आता है अरुण कोलात्कर कविता, 1977 का एक आता है कलेक्शन, बोट राइड। ये इनकी एक नैरेटिव पोइम है, जिसको बहुत क्रिटिकल अटेंशन भी मिला था, बोट राइड को। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जेजुरी, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पोइट्री कलेक्शन है इनका, अरुण कोलात्कर जी का। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ 31 पोइम्स। अमंग इट द मोस्ट फेमस आर द बस्ट, एन ओल्ड वुमेन एंड चैतन्य। चैतन्य ने 16वीं सेंचुरी में महाराष्ट्र के जो क्षेत्र है इसकी विजिट की थी। चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना जाता है इनको। इनके बारे में भी इन्होंने लिखा है, द ओल्ड वुमेन, द बस के बारे में। ये 31 पोइम्स का एक कलेक्शन है। अब हम बात करते हैं इसी के बारे में आगे। इन 1964 कोलात्कर विद हिज फैमिली विजिट्स अ रिलीजियस प्लेस जेजुरी, पुणे, महाराष्ट्र में। इट इज़ द प्लेस ऑफ लोकल डिटी नेम्ड खांदोबा। अनदर वी कैन से इट इज़ अनदर कैरेक्टर ऑफ शिवा, लॉर्ड शिव का, भगवान शंकर का, भगवान शिव का ये एक अन्य रूप माना जाता है। खांदोबा नाम से इनकी महाराष्ट्र में पूजा होती है। ये स्थानीय देवता है वहाँ के, जिन्हें मार्तंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर इनको पूजा जाता है, क्योंकि इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 2 जो राक्षस थे, मल्ल और मणि, इन्होंने संहार किया था, और इनकी पूजा वहाँ पर जो है खांदोबा की जाती है। दिस पोइम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन ओपिनियन लिटरेरी क्वार्टरली इन 1976. It is his most controversial book in commonly viewed as a quest poem. It is a presentation of an encounter between modern consciousness and ancient religious tradition. देखिए, यहाँ पर ये उनको प्रेज नहीं कर रहे हैं। खांदोबा का जब ये
विजिट करते हैं, यानी जिन भगवान की वहाँ पर पूजा होती है, जब ये उस क्षेत्र विशेष को देखते हैं तो इन्हें कुछ अपना ही एक अलग नज़रिया नज़र आता है। तो उसको इन्होंने पॉइंट्स में लाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये एक उसके फॉलोवर नहीं है, ये उसके थोड़ा सा अगेंस्ट जाने वाली चीज़ें हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस इन्होंने किया है। कुछ और फेमस कोलात्कर की जो क्रिएशंस है वो ये है: ए गेम ऑफ टाइगर्स एंड शीप, अलो टेम्पल, हार्ट ऑफ रूइन। इसके अलावा कुछ और है: हिल, मकरंद, स्क्रैच, स्टेशन डॉग, द डोर, द बटरफ्लाई। ये कुछ इनकी पॉइंट्स के नाम हैं जो हम इनको रेगुलर में पढ़ते हैं अरुण कोलात्कर के बारे में जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें दी गई हैं इनके बारे में। अब हम जेजुरी के बारे में देख लेते हैं पिक्चर्स के थ्रू, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में ये है क्या। देखिए, ये जेजुरी में जब आप एक प्लेस में, जो पुणे के पास में क्षेत्र है, श्री क्षेत्र खंडोबा देवस्थान कडेपदार ट्रस्ट जेजुरी भाविकांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे। ये एक एंट्री गेट आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ वहाँ पर दिखाई देता है जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं। ये वो मंदिर है जो आप देख सकते हैं वहाँ पर जब जाते हैं जेजुरी में, जहाँ पर हल्दी चढ़ाई जाती है। हल्दी का मतलब साल में 2 बार आई गेस यहाँ पर एक पूजा होती है बहुत बड़े स्तर पर। और इनको क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि मल्ल और मनी नाम के जो 2 असुर होते हैं, वो काफ़ी मतलब परेशान कर रहे होते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं, तब भगवान शिव जो है वो खंडोबा के रूप में आते हैं और वहाँ पर इनका संहार करते हैं। तो इनमें से एक तो ईश्वर से माफ़ी मांग लेता है और एक सीढ़ियों में उसका सर काट देते हैं। मतलब जो भगवान से माफ़ी मांग लेता है उसको भगवान उसको मतलब कह देते हैं कि ठीक है तुम यहाँ रह सकते हो, और दूसरा कहता है कि मतलब मैं तुम्हारी पूजा नहीं करता हूँ, तो उसको वो सिर भगवान शिव उसका काट कर गिरा देते हैं। लेकिन उसको सीढ़ियों में रखा जाता है ताकि आने जाने वाले लोग उसके सिर को कुचल सकें। तो ऐसी कोई स्टोरी जो है वो देखने को मिलती है। देखिए, ये जो जेजुरी जो प्लेस है, जो मंदिर है, ये बड़े बड़े दीपदान के लिए फेमस है। मेरी फ्रेंड है एक जो मुंबई में रहती है, तो उसके थ्रू मुझे इन चीज़ों के बारे में पता लगा और वास्तव में अच्छा लगता है। और जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि न्यूली मैरिड कपल जो है वो अपनी जो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को अपनी गोद में उठाकर लगभग 200 सीढ़ियाँ हैं उसको चढ़कर जाते हैं और वहाँ पर ईश्वर का आशीर्वाद लिया जाता है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े दीपदान के लिए काफ़ी फेमस है। ये देख सकते हैं आप इस मंदिर को। ये वो एक इसमें भी काफ़ी बड़ा मंदिर है। एक तरफ मंडप है जहाँ पर जो लोग हैं वो आते हैं और वहाँ पर जो काफ़ी मूर्तियाँ उनके दर्शन करते हैं, जो प्रार्थनाएं वगैरह देखते हैं। और दूसरी तरफ है गर्भगृह जहाँ पर खंडोबा की मूर्ति है। ये है वो खंडोबा जी की मूर्ति जिनके दर्शन वहाँ पर लोग जो हैं वो आते हैं, दिन करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। ये देखिए, ये खंडोबा की मूर्ति है। ठीक है, इसको इतना हाईलाइटेड करके देख सकते हैं आप। ये खंडोबा भगवान हैं। ये देखिए, इन्हें मार्तंड, भैरव, मल्लहारी, बहुत सारे नामों के साथ जाना जाता है। और इनकी जो मेन मूर्ति है ना वो ये है। ये थोड़ी सी कट हो गई है मेरे पास पूरा पिक नहीं अवेलेबल हुआ मुझे। इनकी घोड़े पर सवार एक प्रतिमा होती है जिसमें जो मल्ल और मणि जो इन पे अटैक करते होते हैं। ठीक है, फिर है इसकी पूजा की जाती है। फिर जेजुरी की जो ये इन्होंने बुक निकाली थी अरुण कोलात्कर जी ने, वो ये है जिसको अवार्डेड मिला था द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज 1977 में। ठीक है, ये इनका जो है वो काला घोड़ा, ये इनकी अरुण कोलात्कर एंड लिटरेरी मॉडर्निज्म इंडिया। ठीक है, ये है सॉरी फिर है जेजुरी। इसका इंट्रोडक्शन जो है इन्होंने लिखा है अमित चौधरी। देखिए, हल्दी का जो रंग है वो दिखाया गया है क्योंकि ये इसको वहाँ पर छिड़काया जाता है। ये सब सूत्र का जो है वो है क्रिटिकल समरी। ये अरुण कोलात्कर हैं। द इंडियन एसोसिएशन फॉर इंग्लिश स्टडीज़, ये इनकी कुछ बुक्स हैं जो मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू अवेलेबल करवाने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इजी लाइफ के साथ। जल्द ही मिलते हैं एक और प्रोमिनेंट और सेलिब्रेटेड राइटर एंड पोइट्स के साथ। तो धन्यवाद, आभार।